Assalamu alaikum. Today, I'm going to give you an introduction to the course of experimental psychology. This course is now starting to run for you, and before going on to the actual topics of the course, we would like you to know actually what this course is all about and what is it that we are going to cover in this course. और फिर इस कोर्स को पढ़ने और सीखने और इस पे इतना टाइम लगाने से आपको क्या हासिल होगा, तो इन ऑब्जेक्टिव्स को और कंटेंट को थोड़ा सा देखने के लिए लेट्स गो टू द इंट्रोडक्शन टू द कोर्स इटसेल्फ. कोर्स का नाम है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और इसका मकसद है कि आपको फील्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी से मुतारिफ कराया जाए. So you become familiar what is the field of experimental psychology. It will also give you some idea about experimental research and also experimental research करने के कौन-कौन से design होते हैं. Because design is absolutely necessary to carry out any research, especially experimental research. So ये जो main areas हैं इनको हम कवर करेंगे और आप इनसे फेमिलियर होंगे. बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल नो कि एक्सपेरिमेंटल मेथड्स क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैसे की जाती है और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फील्ड किन किन चीज़ों का अहाता करता है, व्हाट डज इट एक्चुअली इंक्लूड. ये करने में क्योंकि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा कॉग्निटिव प्रोसेसेस को स्टडी करती है, यानी हम नॉलेज किस तरह गेन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉग्निशन. So we will give you an update and a basic introduction to the cognitive processes and the detailed study that will be covered in this course. Then by studying experimental psychology, you will develop an investigative and experimental approach. ये approach का मकसद ये होता है कि आपको उस तरह तहकीक करने की आदत पड़ जाए जो experimental psychology का तरीका है. You start thinking in an investigative way about all kind of phenomena. That's the experimental approach. And one objective of this course is that you develop this investigative approach, and that is the success of this course, that people start thinking in a way how an experiment can be conducted or anything that they have observed or they want to know. So you will be able to understand and describe what are the important findings in experimental psychology. Research ने आज तक जो बताया है, अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं. Helping behavior पे experimental psychology ने क्या बताया है, why people become aggressive उस पे क्या बताया है, how are people happier in their workplace, how does light affect behavior in a work setting, all the kind of findings are there. You will be able to describe them because you have studied them in this course. You will also be able to plan and design experiments. That is one learning that will come out of this course. You will also develop, hopefully, an interest in the experiments, because whatever you do well and study actually raises the level of curiosity. And because of that curiosity, you learn faster and you will learn how to do experiments. First simple ones and then complicated ones, because that is a learning outcome of this course. और ये करने में आपको मज़ा भी आएगा और आप सीख भी जाएंगे कि छोटे एक्सपेरिमेंट और बड़े एक्सपेरिमेंट जो है वो रिसर्च में कैसे किए जाते हैं. और क्योंकि ये कोर्स कॉग्निशन को कवर करता है, तो जितने ह्यूमन कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं, परसेप्शन, चीज़ों को देखना, हमारी सारी सेंसेस, हमारी मेमोरी, लर्निंग, हम याद कैसे रखते हैं, हम जजमेंट्स कैसे करते हैं, हाउ डू वी आर्ग्यू, हाउ डू वी रीजन, हाउ डू वी थिंक, हाउ डू वी लर्न लैंग्वेज. सो ऑल द कॉग्निटिव प्रोसेसेस will be part of this course and you will know about them. These are the objectives that for which this course is planned. We will also cover the definition and the history of experimental psychology. We will cover research design and their procedures. We will cover all the cognitive processes that I have described: sights, hearing, smell, touch, taste. These are basic senses. Then depth perception, time perception, problem solving, and the complicated, complex nature of the language.
ये बहुत एक सबसे एडवांस प्रोसेस है इंसान का कॉग्निशन में, कि वो ज़बान बोलता है और बहुत मुश्किल ज़बान समझ सकता है। तो ये हम देखेंगे कि इसके बारे में थेरीज और एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या हैं। तो इस कोर्स की इंट्रोडक्शन देने के साथ मैं आपको थोड़ा सा जायज़ा, थोड़ी सी सैर करा दूं कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट क्या करते रहे हैं और किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो डिज़ाइन करते रहे हैं। ये लिटिल एल्बर्ट की तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी। ये एक बच्चा है जिस पे एक्सपेरिमेंट हुआ था कि बच्चे डर सीखते हैं। तो ये उसकी तस्वीर है और ये अर्ली 20s का, जैसा कि आपने इसमें देखा है, वॉटसन ने किया था, जब वो एक लाउड नॉइज़ क्रिएट करते थे और बच्चे के सामने एक रैबिट या फरी एनिमल होता था तो वो डर जाता था। उसके बाद अगर आवाज़ नहीं भी होती थी तो वो सिर्फ एनिमल को देख के डर जाता था, वो सिर्फ एनिमल की शक्ल देख के या उसको दूर से देख के भी डर जाता था। तो इस एक्सपेरिमेंट ने हमें सिखाया, ये भी एक अर्ली एक्सपेरिमेंट है, ये इन्फेंट्स की अटैचमेंट के बारे में है। बच्चे फिजिकली क्लोज होके किस तरह माओ से अटैचमेंट या केयर टेकर से अटैचमेंट डेवलप करते हैं। ये मॉन्कीज़ पे हुआ था। तो उम्मीद है कि इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है वो एक्चुअली किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करती है। कुछ लैब में होते हैं, कुछ आपकी रियल सोशल लाइफ में होते हैं और कुछ आपके नेचुरल सराउंडिंग्स में हो रहे होते हैं। और उन सब, ये बहुत अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो उन सब की आगे चल के मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगी। जो जो टॉपिक कवर करेंगे उनके एक्सपेरिमेंट्स आप सीखते जाएंगे और बहुत सा रीडिंग मटेरियल होगा जिसमें उन एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल आपको फराहम की जाएगी ताकि आप उसका प्रोसीजर भी समझ सकें। तो आज सिर्फ आपको एक जायका और एक टच ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और क्लैरिटी इसके ऑब्जेक्टिव्स की देना मकसूद था। So hopefully we will be together for a long time.